welcome to the fourth day of this workshop on cloud computing. Before starting with this session, I would just like to inform you tomorrow, not on Saturday. Hope to see you tomorrow. Um, first of all, I welcome you, Ravikantji, and um, I think you can start with the workshop. Okay, thank you. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so we are going to start the session now. So today's session will be quite interesting. But before starting the session, do you have any question, queries, doubts, and all? Anything? Now, how many of you have created your accounts on AWS? Still only two people? Three? Okay, or only three students have created their accounts on AWS till now? So what about rest of the students? Are you facing any issues? Are you facing any difficulties? Then please let me know. What about rest of the participants? Guys, have you created the account or not? And if you are facing any issue, facing any difficulty, because it's a fourth day of our workshop, and if you haven't created your account, then it means you haven't practiced anything till now. And I told you that if you are not going to practice these things, you will forget it about in 1 or 2 weeks simply. Like, because it's a tool, and whenever we get start with a tool, we have to like perform all the things manually with ourselves. This is the only way to remember these kind of things. Until unless you'll practice it out yourself by yourself, then you won't be able to like relate what we are learning in this session. So please, can you just tell me what is the issue, why you are not creating the accounts? Because of the card only, or is there any other issue? Because of card. Okay, you tried on student account that we just saw yesterday. ये सर AWS Educate में ट्राई किया था बट उसमें ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है. Okay. But the problem, if the problem is of only card, then you can try your parents card. I told you, but that won't like. It's not like कि आप लोगों के पैसे कटने शुरू हो जाएंगे अगर आप उनका कार्ड यूज करते हो. Okay, so let's start the session now. So today's objective will be these topics we'll try to cover. Okay. So you will see that there are a lot of topics written, but they only take around 10 to 15 minutes. Okay. Like not all the topic, few topic are like if we talk about the databases and all, it will take time for us to learn. But if we talk about these kind of things, they will only take like 10 to 15 minutes. So we can completely understand the complete structure in just 2 hours. Okay. So before starting this session, like first topic, if we talk about that is introduction to databases. So are you guys learning any database right now?
एनी डेटाबेस। MySQL पढ़ा हुआ है। MySQL पढ़ा हुआ है, ओके। ओके, सब लोगों ने MySQL ही पढ़ा है या MySQL के अलावा भी कुछ पढ़ा हुआ है किसी ने? ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन एक क्वेश्चन के साथ। ओके, लाइक देयर इज अ वेरी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड अ फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम समझते हैं आप लोग? व्हाट इज अ फ्लैट फाइल सिस्टम और अ फाइल सिस्टम? सिंपल, मतलब जो आपके सिस्टम में आप फाइल्स स्टोर करते हो, फोल्डर स्टोर करते हो, दैट इज अ फाइल सिस्टम। डेटाबेस जो आप लोग एसक्यूएल के साथ करते हो। एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि व्हाई वी नीड अ डेटाबेस व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ फाइल सिस्टम। सो हु इज गोइंग टू आंसर? So that redundancy doesn't exist. And what do you mean by redundancy? Sir, repetition of the data. Okay, but we can also manage the redundancy in file system. Don't like duplicate the data. So yeah, but sir, if you are working in a very big area, so sir, in that case, we cannot do like that. Okay, so we have one answer for that, that redundant data can be present in a file system. Okay, or any other answer? आप में से और किसी को लगता है कि भाई डेटाबेस की जरूरत क्यों है फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में? अगर आप देखना शुरू करें, जो फाइल सिस्टम होता है लेस एक्सपेंसिव है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है, तब भी हम उसको यूज नहीं कर रहे। कोई क्वेरी याद नहीं रखनी पड़ती है, नो क्वेरी सिस्टम एट ऑल, कि कहीं भी किसी भी फोल्डर में जाओ, जस्ट गेट द डेटा, पुट द डेटा, व्हाटएवर। लेकिन आप MySQL पढ़ते हो, यू हैव टू लर्न द क्वेरीज, बट स्टिल वी प्रेफर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टोर द डेटा। और कोई रीजन समझ आता भी किसी को? मॉडिफाई करना इजी होता फॉर एग्जाम्पल, है। एंट्री अगर करनी है किसी लोकेशन पे तो उसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्वेरी के थ्रू। उसमें फिर हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है। ओके, और एनीथिंग एल्स इसके अलावा कुछ और? सेफ भी होता है क्योंकि पासवर्ड होता है। सेफ भी होता है क्योंकि फास्ट होता है। पासवर्ड अच्छा, पासवर्ड। डेटाबेस allow data to be stored in a clear organized manner across multiple tables। ये खुद लिखा है आपने आकाश? ओके, गुड। चलो देखो, सबसे पहले द सिंपलेस्ट आंसर इज फाइल सिस्टम इज टू मैनेज द फाइल्स। पहली बात है ना, मैं मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसा आंसर आप अगर मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कोई अलग ही आंसर देने वाला हूँ तो नहीं। फाइल सिस्टम इज टू मैनेज द फाइल्स, फोल्डर्स, डायरेक्टरीज, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम्स है आपके पास। जब आपके पास फाइल्स हैं, स्टोरेज मीडियम आपका कंप्यूटर है, उसमें आपको फाइल्स को मैनेज करना है, देन यूज अ फाइल सिस्टम। आपको डेटा मैनेज करना है, देन यूज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एज सिंपल एज दैट। बड़ी सिंपल सी बात नहीं है भाई कि अगर मुझे डेटा मैनेज करना है तो आई विल प्रेफर अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द डेटा। अब मुझे फाइल्स हैंडल करनी है, फाइल्स मैनेज करनी है, देन आई विल यूज अ फाइल सिस्टम। सिंपल, ओके। Now if I talk about few like advantages कि still कि अगर करना है तो फाइल में डेटा डाल के फाइल सिस्टम यूज कर लो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बट नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। एक आंसर आया था, मैंने नेम नहीं देखा, शायद किसने आंसर किया था, रिडंडेंसी का। दैट्स अ गुड आंसर कि रिडंडेंट डेटा जो होता है आपका फाइल सिस्टम में इजीली किया जा सकता है, डेटा की डुप्लीकेसी भी की जा सकती है, बट डीबीएमएस में इट्स नॉट इजी और इट्स नॉट लाइक कि आप आसानी से रिडंडेंसी जैसी कोई चीजें कर सकते हो, आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो सो दैट योर डेटा विल नेवर बी रिडंडेंट।
One of the major advantage of using database management system that it also provide you the backup and recovery of your data. Okay, it provides you the backup and recovery of your data, even your data if it lost in any scenario, but there is no backup and recovery options in your particular machine if data is lost once. आप लोग ऐसा रीस्टोर पॉइंट वगैरह क्रिएट करते हैं, बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू रिकवर द डेटा. अगर आपने वो डेटा एक बार डिलीट हो गया, वो तो डिलीट हो गया ना. ओके, so that is a basic difference between a file system and a database. Now there are a lot of different types of database available in market. Database बहुत अलग अलग तरह के होते हैं. जैसे relational database होता है, जो कि आज हम देखेंगे भी. That is the RDS known as an AWS relational database service. इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस होते हैं. क्लाउड डेटाबेसेस अलग होते हैं हमारे, नो एसक्यूएल होते हैं, ग्राफ होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल. ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं RDS के बारे में, दैट इज रिलेशनल database service. Now what exactly this relational database service is? So actually relational database service आपका एक relational database management system को represent करता है. तो what do you understand by RDBMS? Who is going to answer? एक तो हो गया DBMS, that is database management system, but I am asking RDBMS, relational database management system. What is that? Sir, how we can relate the data between multiple tables? Okay. Or any other answer? So basically the word itself suggests you, or itself tells you the meaning of relational, that there is a relationship. Okay, why it is said to be relational? Because there is a relationship between the data. So data is being stored in form of tables, and those tables can have some relation between them. So that's why it is known as a relational DBMS. That is one of the most popular database management system in the market. Okay, so like if you use MySQL, Oracle, Postgre, so these are the basic examples of your relational database systems. Okay, now we are going to talk about the relational database services, that is RDS in Amazon AWS. Okay, now what exactly these things are, और like इनका हम लोगों के लिए क्या काम है, किस किस तरीके से इन डेटाबेसेस को मैनेज किया जाता है, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा एंड ऑल, सारी बातें हम लोगों को करनी है. ओके, द प्रॉब्लम विद नॉर्मल डेटा इज लाइक कि अगर हम लोग EC2 की बात करें, जो कि हमारा EC2 जो इंस्टेंस था, अगर उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना होता है. लाइक इफ आई से कि पहले आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद उसकी आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स को मैनेज करना होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू व्हाइल वर्किंग विद द EC2 instance. So that's why there is a term known as RDS, that is relational database service. Relational database service is like fully एक relational database management system के लिए हम लोगों को दिया गया है. Okay, तो AWS क्या करता है? AWS एक मैनेज करता है एक लेयर को OS की. Okay, so basically what exactly happens is, first of all, when we say like what exactly goes behind, like AWS क्या करता है, एक हम लोगों के पास एक लेयर होती है, that is the hardware layer at the lowest point. सबसे lowest पे क्या है आपके पास? एक हार्डवेयर है. ओके, जैसे कि आपके सिस्टम का भी आर्किटेक्चर होता है कि हार्डवेयर है, उसके ऊपर क्या है? एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है. गेटिंग अ पॉइंट? फिर उसके ऊपर क्या है? एक सिक्योरिटी की लेयर है. तो इस तरीके से हम लोगों का ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है. तो AWS क्या करता है? सबसे पहले एक अंडरलाइंग आपकी हार्डवेयर लेयर होती है जिसको मैनेज करता है, उसके ऊपर OS, उसके ऊपर सिक्योरिटी एंड, और फिर यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर एंड ऑल होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर रहे होते, डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं.
तो इसने क्या किया, इसने आपको एक सर्विस कुछ ऐसी प्रोवाइड की जिससे जाकर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने डेटाबेसेस से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मुझे क्या नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे EC2 इंस्टेंसेस की जरूरत नहीं है फिलहाल। आई कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद माय डेटाबेसेस। ओके, सो विल जस्ट लुक इट इन अ मिनट। अब उसके पहले हम एक बात करते हैं यहाँ पर कि जब रिलेशनल डेटाबेस टाइप्स की बात करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस अवेलेबल। सो लेट्स कॉपी दिस। Okay. First, we'll be talking about the relational database services that are provided by the AWS. तो रिलेशनल डेटाबेस के अलग अलग टाइप होते हैं। तो मेजरली 6 तरह के डेटाबेसेस सपोर्ट होते हैं यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ SQL सर्वर यू आर प्रोवाइडेड विद, देयर इज Oracle सपोर्ट, Oracle का भी इसके पास सपोर्ट है, MySQL का सपोर्ट है इसके पास, इट आल्सो सपोर्ट्स द PostgreSQL, it support Amazon Aurora, and it also supports the MariaDB. So these are the 6 database services that are supported by default by Amazon RDS. So Amazon RDS का मतलब क्या है, Amazon Relational Database Service। उसके अंडर में आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेसेस आते हैं, इनके अंदर से उठाकर आप कोई एक डेटाबेस यूज करना शुरू करते हो। तो सबसे पहले एक टाइप हो गया आपके पास Amazon RDS। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, लाइक Amazon Aurora इटसेल्फ एक टाइप भी है। फिर हम लोगों के पास NoSQL के लिए कुछ ऐसा भी होगा, सपोज देयर इज अ Amazon DynamoDB, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। DynamoDB हम लोगों के पास होता है, देयर इज अ Redshift, Elasticcache। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, फिर सर्विसेज होती है जो कि आपको AWS प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ ज्यादातर के बारे में हम लोग सुन चुके होते हैं कहीं ना कहीं से, लाइक हम SQL सर्वर पता है कि इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, बहुत पॉपुलर है। Oracle भी काफी पॉपुलर है कि ये एक हम लोगों का एक रिलेशनल डेटाबेस है, बहुत पॉपुलर, बड़ी कंपनीज एंटरप्राइजेस को यूज करते हैं। ओके, MySQL सर्वर इज अगेन अ पॉपुलर वन, Postgre भी पॉपुलर है, बट द टर्म Amazon Aurora इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस ही होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन अपकमिंग सेशन। ओके, then MariaDB again it is an open source relational database that is built by developers of MySQL. Okay, तो इसको देखना शुरू करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है। लेट्स गो टू योर AWS अकाउंट। So in this AWS account, let's go to the management console first. और यहां से जाकर हम लोगों ने सिंपली सर्च करना है RDS, दैट इज मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। यहां पर चलते हैं। यहां जाने के बाद हम लोगों को चूज करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट यू वांट टू क्रिएट, किस तरह का डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हो। सो इट इज टेकिंग फ्यू सेकेंड्स। ओके, now we can just go to the databases here. यहाँ left side में databases पे click करते हैं। This is the database that I have created till now. So first let's go to the create database. Create database पे चलते हैं और यहाँ से जाकर हम लोग देखना शुरू करते हैं कि what are the types of database it provides. जैसा कि मैंने आपको बताया, these are the 6 type of RDS डेटाबेस सर्विसेज। तो आपको 6 तरह की डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज MySQL, क्योंकि MySQL से हम लोग बाय डिफॉल्ट सब फेमिलियर होते ही हैं इन जनरल। सो विल बी स्टार्टिंग विद MySQL फर्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग यू टू चूज अ वर्जन एंड आफ्टर दैट इट इज आस्किंग यू द टेम्पलेट। ये बोलता है कि भाई आप देखो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ फ्री टियर। सो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग अ फ्री टियर सर्विस जस्ट टू टेस्ट दी कि लाइक हम लोगों को किस तरीके से स्टार्ट करना है यहाँ पर। By default, I already have a database 1, so it is recommending me to name it as database 2. इस database का नाम database 2 रख के आ जाते हैं, no problem with that. Now the user name it has provided me is the admin, and now it is asking for the password. तो make sure कि आप जो भी password लिखते हो, it is asking for at least 8 printable characters. So let me simply write
Okay, so I have just created a password here. Now, after that, after creating passwords and all, it will ask you to choose the different classes available, but obviously we won't be able to choose क्योंकि हम लोगों ने फ्री टियर यूज किया है. तो फ्री टियर में हम लोगों के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते. बाय डिफॉल्ट फ्री टियर में देयर इज ओनली वन ऑप्शन वी हैव. ओके, now after that, let's go here. Now it is asking for the storage. That is one of the best feature of this AWS service. ये आपसे storage भी पूछता है कि आपको क्या लगता है कि what is the amount of data you will be having, कितना amount of data आपको like store कराना पड़ सकता है. So by default is allocating you 20 GB. So minimum is 20 GB and you can see maximum is 16,384 GB that is allowed. Okay. Now it is also asking like charges will apply when your database auto scales to the specific threshold. Okay, तो यहाँ पर ये बताता है कि देखो अगर इस threshold के ऊपर जाते हो ना, this is the by default allocated storage you have, and then it is asking you maximum storage threshold, so it will apply the charges after that. Okay. Now multi-AZ deployment is also disabled for us क्योंकि free tier है. Connectivity, we don't have to do anything in any of this. Public access must be no. Public access मतलब publicly उसको कोई access नहीं कर सकता है. तो अगर आप उसको yes कर देते हो तो Amazon EC2 instance and device outside the VPC can connect to your database. कोई भी outsider इसके साथ connect कर सकता है. We don't want that. So we have to choose it no. इसके बाद if you want to choose a security group, database की अपनी securities हैं, just like the EC2 instance. जैसे EC2 instances के security group थे वैसे ही इसके भी security groups होते हैं. तो ये कहता है या तो आप एक existing choose कर सकते हो या फिर अपने एक नया कोई security group create कर सकते हो. Okay, so if you want to choose, then by default I'm not choosing anything. We'll see if it will give some error and all. And I think that's enough. We don't have to do anything else. पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड है हम लोगों का. ओके, तो उसके बाद आपको जिसकी बिलिंग, ये इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसको जरूर आप लोगों ने पढ़ना चाहिए हमेशा. व्हाट इट इज सेइंग, Amazon RDS free tier is available for you for 12 months. Each calendar month free tier will allow you to use RDS listed below for free. तो कहते हैं 750 hours of Amazon RDS, 20 GB of general purpose storage, 20 GB of automated backup storage. ये सब चीजें आपको मिलती हैं. So let's create the database. Now finally you can see database 2 is created, but obviously it is going to take some time. आप देख सकते हो कि ये अभी create कर रहा है इसको. It is right now creating the database. So we have to like keep patient. हम लोगों को थोड़ा patience रखना पड़ेगा. Okay. So meanwhile we'll be talking about few things about the MySQL, क्योंकि अभी हम लोग MySQL create कर रहे हैं, that's why. तो जब हम MySQL पे काम करते हैं, so I am just opening my command line here. Okay, now here we just get started with this MySQL. ये हम लोगों का command line start हो जाता है. तो ये same commands हम लोग की वहां पर भी supported होंगी, and what we have to do, we just have to like use whatever the database you want to. So suppose I have online shopping DB. Okay, so I'm going to use this database, then I can see the tables inside it. So I have customer, products. So these kind of tables are available. So you have to make sure कि आप लोगों की SQL की skills अच्छी होनी चाहिए इसके लिए. Okay, क्योंकि obviously अच्छे होने चाहिए क्योंकि आप database जो use कर रहे हो अभी SQL है, और फिर जब कोई और use करोगे तो उसके according आपको hands on करना पड़ता है. So I hope it is clear till here that how we have to create the database in a proper manner. Any question, any query, कुछ भी पूछना है किसी को? समझ आ गया सब लोगों को database कैसे create किया जाता है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं. इसको कुछ मेरे ख्याल से 10 मिनट्स लगते हैं बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तब तक हम एक दो चीजों के बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं अभी. ओके ओके, तो अभी हम लोगों ने जो बात की थी वो था रिलेशनल डेटाबेस. ओके, नाउ इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द नॉन रिलेशनल या नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो इसके बारे में कुछ नॉलेज है आप लोगों को? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस? बताइए भाई.
एनीवन, एनी आइडिया, कुछ भी? अच्छा ठीक है, तो बात करना शुरू करते हैं। देखो आज की डेट का वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है नो एसक्यूएल डेटाबेस। मतलब ये सब तो पुरानी बातें हो गई, ये जो एसक्यूएल एसक्यूएल है, अब चलता है नो एसक्यूएल। ओके, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नो एसक्यूएल। तो अभी हम लोगों ने एसक्यूएल के बारे में बात की, अभी हम लोग नो एसक्यूएल के बारे में समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। ओके, नॉट ओनली एसक्यूएल। और ये क्या करता है, एक नेक्स्ट जनरेशन डेटाबेस है, दैट इज फॉर द 21st सेंचुरी स्पेसिफिकली। ओके, तो नो एसक्यूएल नाम से ही समझ आता है दैट देयर इज नो एसक्यूएल। व्हाई देयर इज नो एसक्यूएल? क्योंकि एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम विद टुडेस टाइम इज डेटा इज नो मोर स्ट्रक्चर्ड। आज की डेट में डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो एसक्यूएल की भी इतनी डिमांड नहीं है। सो डेटा इज ऑफ 3 टाइप। एक आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सो यू हैव 3 टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जो टेबल्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि आपका एक्सेल फाइल होती है, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, उसमें आईडी, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब डालते हो, दैट इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड टेबल सक्सेसफुली। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है रॉ टेक्स्ट। ओके, या फिर हम लोगों के पास हो सकती है इमेजेस, वीडियोस। दिस काइंड ऑफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इज समथिंग लाइक XML, JSON. So this type of data is considered as semi-structured. अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी हम लोग डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं, द ओनली थिंग इज कि डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को एक ऐसे डेटाबेस की नीड है आज की डेट में जो टेबल्स के बिना भी एग्जीक्यूट, मतलब हम उसको विदाउट टेबल भी डेटा स्टोर करना सीख सके। ओके, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जरूर उसके साथ, तभी हम लोगों को ऐसे कुछ सॉल्यूशंस मिले। सो लेट्स डिस्कस अबाउट वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर्ड डेटा, कि स्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सी, सपोज यू हैव अ टेबल। आप लोगों के पास एक टेबल है जिसमें आप यूजर का कोई डेटा स्टोर कराते हैं। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ वेरी बेसिक सिंपल टेबल आई हैव क्रिएटेड, और इसके इनसाइड हम यूजर से क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराते हैं, जिसमें कि यूजर अपनी आईडी प्रोवाइड करता है, नेम प्रोवाइड करता है, पासवर्ड प्रोवाइड करता है, अपना एज, सिटी, ये सब प्रोवाइड कर रहा है यूजर। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब यूजर से आप ये सब एज अ इनपुट लेते हो, देयर इज अ आईडी, दैट कुड बी ईमेल आईडी और एनीथिंग, नेम, password, city and age, something like this. This is the kind of data जो कि हम लोगों ने स्टोर कराया, किससे? यूजर से, एक फॉर्म के अंदर। यूजर ने अपनी आईडी लिखी 101, नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, सिटी, एज। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में जब आप एक फॉर्म फिल करते हो तो स्टार लगा होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टार? द मीनिंग ऑफ दैट स्टार इज सिंपल, कि वो रिक्वायर्ड फील्ड्स है, मैंडेटरी फील्ड्स है। तो सपोज एज के साथ वो स्टार प्रोवाइडेड नहीं था, तो किसी ने आईडी, तो ये सब तो 4 फील्ड्स लिखने ही है, लेकिन किसी को पता है कि ऑप्शनल है तो उसने नहीं लिखा, किसी को नहीं पता था उसने लिख दिया, फिर किसी को पता है तो उसने नहीं लिखा। सो जस्ट इमेजिन दिस थिंग, जिसको पता है कि ये फील्ड ऑप्शनल है वो छोड़ देगा उस फील्ड को, जिसको नहीं पता वो फिल कर दे रहा है। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, कि यहाँ क्या स्टोर किया जाएगा? What is the like वैल्यू है? जिसकी एज की वैल्यू होगी उसकी एज की तो वैल्यू हम देख पाएंगे, लेकिन जो एज फिल नहीं करेगा, what will database will store at that particular point? सपोज 2 लोगों ने एज फिल की थी, so we have, but अगर किसी ने एज फिल नहीं की, so obviously you are going to see null. That is one of the problem with this structured kind of database. One of the problem कि अब अगर डेटा नहीं है तो उसके लिए नल स्टोर किया है, मतलब एक गार्बेज, एक एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर स्टोर करना जरूरी था क्या? क्योंकि टेबल की फॉर्म में है, स्ट्रक्चर डेटा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टोर समथिंग इन दैट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये था आपका एसक्यूएल। सो द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, यूज नो एसक्यूएल। हाउ? ये क्या करता है, कहता है देखो, जो डेटा स्टोर किया जाएगा ना, वो किया जाएगा की वैल्यू पेयर्स में। सो द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ की एंड अ वैल्यू पेयर।
जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हो. यू नेम इट एज जेसन. अगर किसी को नहीं पता तो इसको जेसन बोलते हैं, या फिर आप पाइथन में इसको डिक्शनरी भी बोलते हो, या फिर आप इसको जावा में हैश मैप बोलते हो. तो इट इज पॉपुलर इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामिंग. तो जेसन एक कॉमन डेटा फॉर्मेट है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट, लेट्स सी. तो ये क्या कहता है देखो, सपोज आपका यूजर 1 है, उसका जो डेटा है ना, हम लोग ऐसे स्टोर करा लेते हैं कि उसने अपना नेम बताया था, सो आई हैव द नेम ऑफ हिम, सपोज द नेम इज राम. उसने अपना एज भी बता दिया था, एज इज 40. उसकी मेरे पास ईमेल आईडी है, आई हैव द पासवर्ड, सो आई हैव दीज 4 फील्ड्स. तो ये यूजर 1 का डेटा था, जिसमें कि एज क्या था हमारा, ऑप्शनल. सेकेंड यूजर आता है, वो कहता है अच्छा नेम फिल करना मैंडेटरी है, सो आई विल जस्ट राइट डाउन माई नेम. फिर उसने देखा एज ऑप्शनल है तो उसने एज छोड़ दिया. फिर उसको पता है ईमेल फिल करना मैंडेटरी है, पासवर्ड फिल करना भी मैंडेटरी है. दैट्स इट. अब इस डेटा को अगर ध्यान से देखें तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज स्कीमा फ्री और स्कीमा लेस. क्यों बोलते हैं स्कीमा फ्री स्कीमा लेस? क्योंकि एक फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता, एक फिक्स आर्किटेक्चर, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है उसका. तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इट्स अ स्कीमा फ्री. क्योंकि यहां पर 4 एंट्री है, यहां पर 3 एंट्री है. हो सकता है आप एंट्री ही चेंज कर दो, एक थर्ड यूजर आता है, अब उसके लिए सपोज कोई अलग फॉर्म है, सपोज वो क्या है, वो एक एडमिन है, तो आपके पास एडमिन आईडी है यहां पर एक, सपोज दिस इज द एडमिन आईडी एंड दिस इज द एडमिन पासवर्ड. नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि फील्ड ही बदल गए. तो अभी तक क्या था कि फील्ड्स, एक हमारे पास 4 फील्ड है, इसके अंदर 3 है, लेकिन एक और हमारे पास एक ही पर्टिकुलर डेटा का पार्ट है ये सब. इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ सिंगल डॉक्यूमेंट कलेक्शन, सॉरी. तो ये एक ही कलेक्शन के आपके पास 3 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा फ्री और स्कीमा लेस. सो आई होप इट इज क्लियर कि नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है. सबसे पहले समझ आया आप सब लोगों को, नो एसक्यूएल इसको बोलते हैं. बताइए भाई, एवरीवन गिव मी अ कंफर्मेशन. फिर इसके बाद देखो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं आपको नो एसक्यूएल में. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. तो फिर सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस. हमारे पास मेजर 4 तरह के डेटाबेसेस होते हैं नो एसक्यूएल के अंदर. एक होता है हम लोगों का की वैल्यू पेयर्ड, एक होता है हम लोगों का कॉलम ओरिएंटेड, then we have a graph based database, then there is a document oriented database. तो हम लोगों के पास मेजरली 4 तरह के नो एसक्यूएल टाइप के डेटाबेसेस होते हैं. सो व्हेन वी से की वैल्यू पेयर्ड, तो नाम से ही समझ आता है की वैल्यू पेयर्ड मतलब ये, दिस इज द की वैल्यू पेयर्ड डेटाबेस, जिसमें एक की होती है और एक वैल्यू होती है. दैट्स इट, दैट्स अ की वैल्यू पेयर्ड डेटाबेस. देन देयर इज अ कॉलम बेस्ड. अगर हम की वैल्यू पेयर्ड की एग्जांपल्स की बात करें कि किस किस तरह के डेटाबेसेस हैं जो की वैल्यू पेयर्ड में कंसीडर किए जाते हैं, देन DynamoDB is considered as a key value paired database. Okay, so DynamoDB is the example of it. That is of Amazon. Now when we talk about column oriented, that's an interesting database. ये काफी एक interesting database होता है हम लोग का column oriented. देखते हैं कैसा दिखता है. So let's create a new page here और यहाँ जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि how a column based डेटाबेस लुक लाइक. तो आज की डेट में कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं, देयर इज अ कैसेंड्रा, एचबेस, हाइपरटेबल. ये इस तरह के डेटाबेसेस हैं जो कॉलम बेस्ड कैटेगरी में आते हैं. कैसेंड्रा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इन दिस कैटेगरी. एचबेस भी बहुत पॉपुलर है. ये सब बिग डेटा के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. सो व्हाट इट डज, ये कहता है कि देखो ऐसा करना है हमने, यू हैव टू क्रिएट अ कॉलम फैमिली. So you will be creating a column family. तो यहां पर हम लोग को मिलती है एक रो की. So there will be a key for a particular document oriented.
डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड में क्या होता है कि यू हैव अ कलेक्शन, यहाँ पर टेबल्स नहीं होती, टेबल्स की जगह क्या होते हैं यहाँ पर कलेक्शंस होते हैं, और कलेक्शंस के अंदर क्या होते हैं, कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओके, इफ आई रिलेटेड विद द एसक्यूएल, तो एसक्यूएल में क्या होता है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होती है, और टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर आपका रो होता है और रो के साथ कॉलम होता है। यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अगेन की वैल्यू पेयर। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर कोई की है ना तो उसके एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है हम लोगों का। देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ नेस्टिंग, आप एरे भी बिल्ड कर सकते हो, आप अनदर नेस्टेड के अंदर एक और नेस्टिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, दैट इज MongoDB। तो MongoDB अगर आप सर्च करोगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस इन टुडेज टाइम। Now the last database is known as the graph database. So graph based databases भी बहुत पॉपुलर है आज की डेट में। तो जो लोग डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज देयर इज अ ग्राफ हियर, ओके। सो आई होप आप लोगों ने ग्राफ डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कभी ना कभी। इफ नो देन नो इश्यू। तो हम लोगों के पास इस तरह के भी डेटाबेसेस होते हैं, जस्ट इमेजिन दिस थिंग। तो एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है नोन एज Neo4j, ओके, दैट्स अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द NoSQL graph based database. Okay, so I just have told you few examples of different NoSQL databases. तो ये अलग अलग तरह के हमारे NoSQL databases होते हैं। तो similarly in AWS we'll be having these kind of things. AWS के पास भी अलग अलग तरह के NoSQL databases service हैं। The example is DynamoDB. So I hope it is clear till here that what exactly NoSQL databases are और उनके क्या क्या types होते हैं, किस किस तरह का NoSQL database दिखता है, नजर आता है हम लोग को। एनी क्वेश्चन? अभी आप सब लोगों को समझ आ गया NoSQL डेटाबेस क्या होता है भाई, बिल्कुल अच्छे से? यस सर। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का वो भी लोड हो गया होगा। तो देखते हैं इसको। नाउ इट इज अवेलेबल। अभी हम देख सकते हैं कि इसने कुछ टाइम लिया, उसके बाद वी कैन सी इट्स अवेलेबल नाउ। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस डेटाबेस टू, इस पे क्लिक करते हैं। और डेटाबेस टू अभी कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है या ये सब बातें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर कि वो कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई कर चुका है, कितनी उसकी अवेलेबिलिटी है, सारी बातें हम धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगे। ओके, नाउ वंस योर डेटाबेस इज अवेलेबल टू यू, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, देयर इज अ पोर्ट नंबर। बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल का पोर्ट होता है दैट इज 3306। ओके, रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के। Okay, now if we want to work with our databases in a proper manner, जैसे कि अब हम लोगों को अगर डेटाबेस के अंदर टेबल इंसर्ट करना है या कोई भी अगर हम लोगों को ऐसा टास्क करना है जो कि हम अपने MySQL कमांड लाइन पर करते हैं, तो वो सेम टास्क यहाँ पर कैसे परफॉर्म होगा, जस्ट गो टू AWS और यहाँ से हम अपना एक EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं। सो लेट्स गो टू एनी वन ऑफ द EC2 इंस्टेंस and from there we will be, so it's already up and now I'm going to just click on this and connect. Okay, so मैंने अभी जाकर क्या करना है, I am just going to launch any one of the instance that I have और उसको कनेक्ट कर लेते हैं। आप इसको लोकल मशीन से भी कर सकते हो if you have MOBA Xterm in your machine, या फिर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। Now, what are the steps to get started with the database part? अब अगर आप लोगों को database part start करना है, so you have to first install the MySQL service in your machine. लेकिन उसके पहले हम लोगों को लिखना है sudo su hyphen so that it will just get back to you here. ये root user as a login करता है. Then you have to write yum hyphen y install MySQL. तो क्या करना होता है हम लोगों ने, we have to write this command yum hyphen y install MySQL to install the MySQL.
Okay, so hit enter, it will start installing, but in my case it is already installed. ये मेरे केस में क्या है, यहाँ पर already installed है. अब हम जाकर लिखते हैं MySQL enter to start the server. लिखें. जैसे ही हम MySQL लिखकर एंटर करते हैं, ये बोलता है कि बाय डिफॉल्ट आई कैन नॉट कनेक्ट टू लोकल MySQL सर्वर सॉकेट. तो अब उसका रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल, कि हम लोगों को जाकर जब MySQL की सर्विस अनेबल करनी, MySQL को यूज करना है, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते. Okay, you cannot just write MySQL, hit enter, it will start the SQL for you. So what you have to do, you have to write MySQL -h, and after that what you need to do is you need to copy this thing. आपको इसको कॉपी करना है. This is the end point you have, and then you have to paste it. इसको जाकर paste करना है यहाँ पर. Then write -u, then the username and -p, enter your password. अब पासवर्ड जो भी आप लोगों ने लिखा था, enter. Now you can see we are connected with the MySQL database successfully. Okay, so I hope it is clear that how we can connect ourselves to the database. अब यहाँ जाकर हम देखते हैं show databases की जो कमांड SQL में वर्क करती है, क्या वो यहाँ पर भी करती है? बिल्कुल. So if you want to create a database, you can create it. So let me simply write create database db_1, then query okay, then use db_1, and we are now inside the db1. Then I can even create a table. So let's write a create user id as integer, username as a varchar with 100, then user city again varchar 100. So that's it. We have created a table as well. Now I can see my table. So that's it. अब मतलब हम लोग जो अपना SQL में करते थे वो सब कुछ यहाँ पर भी अब हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है. So I hope it is clear that how to get started with the RDS, Relational Database Service of the Amazon. Any question? Any query? पूछना है किसी को कुछ? सिंपल था भी बिल्कुल. बताइए एक बार आप सब लोग, गिव मी अ कंफर्मेशन इफ वी आर क्लियर टिल हियर. ओके. ठीक है. ठीक है, तो now I hope we are clear till here so that we can start our next topic. We just know that how to connect with the database. अब हम लोग को ये पता है यहाँ तक. Okay. Okay, so now we'll be talking about this. Okay. So now there is one more database known as Aurora DB, that is a database engine also developed in RDS, that is Relational Database Service. तो अब हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस सर्विस ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या होती है. उसी के अंदर एक और एक्सटर्नल हमारे पास एक एक्स्ट्रा डेटाबेस सर्विस है, एंड दैट इज लाइक एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, वन ऑफ द बेस्ट डेटाबेस है जो कि आपको Amazon प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ लाइक इट हैज अ स्केलिंग कैपेबिलिटी जो कि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. सो इट स्केल्स लाइक कि जितना आप इसमें डेटा पुट करते हो उसके अकॉर्डिंगली स्केल अप होता चला जाता है. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ Amazon Aurora. ओके, तो अब हम लोगों ने अभी तक जितने भी डेटाबेसेस कभी भी देखे होंगे कि आपके पास SQL होता है, NoSQL होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस यू हैव. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस Aurora, it is actually like a combination of two things. One is a MySQL and one is a Postgre.
Okay, so whenever we talk about the Aurora DB, so actually it is a MySQL and PostgreSQL compatible relational database that is built specifically for the cloud. So it is going to combine the capabilities. तो ये जाकर क्या करता है, जितनी भी अवेलेबिलिटी आपके SQL की होगी, Postgre की होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, सबको जाकर कंबाइन करता है, एंड इट इज 5 times faster than standard MySQL. Time faster, okay, and 3 times faster than the PostgreSQL. So that is the beauty of this Aurora DB. तो अब इसके अगर मेन फंक्शनैलिटीज की हम लोग बात करें, व्हाट आर द मेन फंक्शनैलिटीज इट ऑफर्स? परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केल. तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको Aurora DB प्रोवाइड करता है. So how we are going to look into this? So let us go to the databases. Databases में चलते हैं हम अपने. Now suppose we are going to create a new database. If I have to create a new database, then it will show you a option of, first of all, Amazon Aurora DB. Okay, अभी हम create नहीं कर रहे हैं. I'm just showing you this. Now it is saying that addition of Amazon Aurora with MySQL compatibility or PostgreSQL compatibility. Like what is the compatibility that you want? उसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं. So when we was in MySQL, जब हम MySQL के अंदर होते हैं ना, so let me show you one thing. आपके पास एक स्टोरेज का ऑप्शन आता है जो ये बताता है आपको कि लाइक एलोकेटेड स्टोरेज इज दिस, एंड आप उसको कितना स्केल कर सकते हो, किस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद आपको ये चार्ज करेगा एंड ऑल. लेकिन जब हम Amazon Aurora DB पे जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, let's scroll down, like that's it, finish. There is no storage option. Storage का कोई ऑप्शन ही नहीं है. Now relate this thing कि storage का ऑप्शन क्यों नहीं है? Obviously इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि ये आपको क्या बोल रहा है कि you don't have to like worry about the storage space in this Amazon Aurora DB cases. So that is one of the finest example of the Amazon Aurora कि आपको जाकर अगर कभी भी यूज करना है तो आपको समझना है कि ये कुछ स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दे रहा है. So that is the thing we need to understand about this Aurora DB. Okay, now the next thing is that अगर हम लोगों को जाकर इन databases को मैनेज करना है, if we have to understand manage these databases, like how these databases are managed, then we have to talk about the term known as Cloud Watch. इसके लिए हम लोगों को किस चीज के बारे में बात करनी होती है? Cloud Watch. Okay, so we'll be talking about the Cloud Watch, and I hope this Aurora basic concept of Aurora DB is clear. I think कुछ पूछना है किसी को इसमें? बेसिक यही है कि लाइक एक पोस्टग्रे और एसक्यूएल जैसा ही डेटाबेस है, इसके अंदर कुछ ऐसा आपने अलग से नहीं करना है. ओके, तो अगर आप इसको क्रिएट करते हो MySQL कंपैटिबिलिटी के साथ, तो MySQL की तरह ही आप इस पे क्वेरीज रन कर सकते हो. डिफरेंस समझ लेना आपने कि डिफरेंस क्या है, कि स्टोरेज ऑप्शन खत्म कर दिया तो स्केलेबल हो गया हाईली है. ये दिस इज द मेन पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है बस. हाँ जी, क्लियरिटी आप सब लोगों को? गाइस गिव मी अ कंफर्मेशन इफ यू आर क्लियर. Okay. So the next thing we'll be talking about is the CloudWatch. Now what exactly CloudWatch is? It's a monitoring service. अभी तक जितना भी हम लोगों ने काम किया उसको मॉनिटर करना नहीं सीखा है. मॉनिटर करने का क्या मतलब होता है? लाइक देयर इज अ मॉनिटर इन अ क्लास में एक मॉनिटर होता है. वो क्या करता है? उसका काम क्या है? पूरी क्लास पर नजर रखना, पूरी क्लास को मॉनिटर करना. जैसे कि मेरे पास एक टास्क मैनेजर है जिसके अंदर मॉनिटर है, मैं जाकर देख सकता हूँ अपने सिस्टम की सीपीयू. ये क्या है? मॉनिटरिंग है कि मैं देख सकता हूँ मेरे सिस्टम में कितनी एप्लीकेशंस ओपन है, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ये सब चीजें मैं मॉनिटर कर सकता हूँ यहाँ से. सो ये भी अगर एक मशीन है तो EC2 या Amazon जो आप यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मशीन. तो वो भी तो एक मशीन है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो मशीन है तो उसको कैसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं.
ओके और ये किस तरह की चीजों को आपको मॉनिटर करने के लिए लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ये आपको कहता है कि आप अलार्म सेट कर सकते हो, लॉग फाइल्स को मॉनिटर कर सकते हो. सो दीज आर द काइंड ऑफ फैसिलिटीज यू कैन गेट विद दिस क्लाउड वॉच. Okay, so what we have to do, just go to this section and let's go to the databases, and from here we'll be selecting any one of the database. किसी भी एक database पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को एक option मिलता है that is monitoring. Okay, so we can clearly see this option कि हम लोग जब भी databases में जाएंगे तो हमेशा हम लोगों के पास एक ये monitoring का option available होता है. Let's go inside this option and now you will be able to see the thing we are talking about CloudWatch. Okay, so first of all CloudWatch की मेजर 4 चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को याद रखना है. फर्स्ट थिंग इज अ CloudWatch डैशबोर्ड. सबसे पहले CloudWatch का एक डैशबोर्ड होता है. देन देयर आर अलार्म्स, देन देयर आर लॉग्स एंड देन देयर आर इवेंट्स. तो हम लोगों के पास मेजर 4 चीजें होती हैं, 4 मेजर टर्म्स होती हैं जो CloudWatch के साथ एसोसिएटेड होती हैं. डैशबोर्ड क्या है? सिंपल डैशबोर्ड ही कुछ ऐसा डैशबोर्ड की तरह ही है. बाकी इसके हम स्पेसिफिक एक अलग से डैशबोर्ड पे भी जाकर इसको देखेंगे कि वहां पर इसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है. फिलहाल हम जो कर रहे हैं ना वो है मॉनिटरिंग. दिस इज द मॉनिटरिंग ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन. अगर आप देखना चाहते हो कि हाउ मच सीपीयू इज बीइंग यूटिलाइज्ड, जस्ट लुक एट दिस कि ये है हम लोग का सीपीयू यूटिलाइजेशन. ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी हम लोगों ने जो कुछ सर्विसेज यूज की होंगी अब हम उन सबको यहां से मॉनिटर कर पाएंगे. सो सीपीयू यूटिलाइजेशन, डेटाबेस कनेक्शंस, फ्रीएबल मेमोरी, फ्री स्टोरेज, राइट आईओपीएस, काउंट पर सेकेंड, रीड ऑपरेशंस. देन लेट्स गो टू द सेकेंड पेज, क्यू डेप्थ. तो बहुत डेप्थ में जाकर हम सब कुछ उसका मॉनिटर करके आ सकते हैं हर एक सर्विस को. ओके, नाउ लेट्स गो टू डेटाबेसेस एंड इनसाइड दैट डेटाबेसेस 2 में चलते हैं. इसको भी आप सेम लेवल पर मॉनिटर कर सकते हो. लाइक जस्ट लुक एट दिस डीबी कनेक्शन, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एक डेटाबेस कनेक्शन इसके साथ बिल्ड किया था. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि अब हम लोगों ने अगर इसके साथ डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड किया है तो इट इज ऑल्सो शोइंग यू दिस थिंग. तो जितने ज्यादा आप डेटाबेस कनेक्शन बिल्ड करोगे यू विल बी एबल टू मॉनिटर ऑल ऑफ देम. So I hope it is also clear that what is CloudWatch. ये basic CloudWatch है जो अभी हम लोगों ने देखा है. Now over this thing कि अभी हम लोगों के पास जैसे 4 चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी, like there is alarm and all. तो ये सब चीजें देखने के लिए let's search here CloudWatch. यहाँ पर हम लोग CloudWatch सर्च करते हैं. Let's go inside this. तो CloudWatch के अंदर यहाँ पर हम लोग को क्या नजर आता है? Just look at this option. We have the alarm insufficient. ओके, ठीक है. तो अलार्म कब अलार्म कब ट्रिगर होगी? जब आप किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाओगे, आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन आप कुछ ज्यादा करते हो तब. तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन आता है अलार्म्स. लेट्स क्लिक ऑन इन अलार्म. तो अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कोई भी अलार्म हमने क्रिएट नहीं किया है. लॉग्स हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं. लॉग्स क्या होते हैं कि लाइक जो भी आपका कोई, जैसे अभी ना हम आज लैम्डा सीखेंगे तो उसके अंदर हमारा अगर कोई भी आप कोड लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, इट इज गोइंग टू क्रिएट दी लॉग ऑफ दैट. तो हम अंदर जाकर देख सकते हैं कि कोई चीज कब क्रिएट हुई थी, कब उस पर क्या आपने काम किया है. देयर आर मैट्रिसेस, ये भी ट्रैक करने के लिए कि आपकी क्या क्या कितनी कितनी सर्विसेज है जो लॉन्च की है आपने, कितनी बार किसको चलाया आपने. लैम्डा 16 मैट्रिसेस, कितने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ आपको प्रॉपर इनसाइड डिटेल्स मिल सकती हैं. ओके, so this is the major objective of like using the CloudWatch, just to monitor all these things कि हमें इन सब चीजों को क्या करना है, मॉनिटर करना है. and to monitor you need to like understand the CloudWatch. So I hope it is clear that how CloudWatch works. समझ आ गया भी आप लोगों को? CloudWatch सिंपल था. Yes, sir. वापस चलते हैं डेटाबेसेस में. हाँ जी, कोई क्वेश्चन क्वेरी है किसी को तो भी बता सकता है वो. ओके देन फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद भी हम लोग.
नेक्स्ट भी एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम लोगों का, सिंपल नोटिफिकेशन service. That's short for SNS. Okay. Now we'll be talking about this term, simple notification service. Again, a very helpful like service provided by Amazon. ये क्या एक सर्विस प्रोवाइड की गई है हम लोगों को, एक मैसेजिंग सर्विस है जो आपको नोटिफाई करती है आइदर बाय द ईमेल और ऑन द मैसेज एज वेल, वो आपको एसएमएस भी कर सकती है. ओके, तो हम लोगों को एक AWS ने, Amazon ने जो प्रोवाइड की है सर्विस, इट्स अ फुली मैनेज्ड मैसेजिंग. इसके अंदर आप मोबाइल नोटिफिकेशंस भी पुश कर सकते हो, लाइक पुश नोटिफिकेशंस आती है हम लोग के पास, वी कैन आल्सो हैव दैट, ताकि आप अपने जो भी सब्सक्राइब्ड एंड पॉइंट्स होते हैं उनको मैसेज डिलीवर कर सको. तो द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये किस तरीके से वर्क करता है. सो देयर इज अ, suppose there is some sort of a user you have, or we say endpoint, whatever, there will be some sort of a SNS topic. Okay, that is a simple notification service topic, and that could be triggered to different services. Like you can have the email service, you can have the मैसेजिंग सर्विस, SMS सर्विस. तो अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं जो आप इसके थ्रू जाकर ट्रिगर कर सकते हो. ओके, सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट कि कैसे हम लोग को इसको हैंडल करना है, कैसे हम लोग को इसको मैनेज करना है. लाइक वी कैन टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द एग्जांपल फर्स्ट. जब भी हम लोग कुछ किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद क्या होता है कि इट स्टार्ट सेंडिंग यू द मेल्स, द मैसेजेस एंड ऑल. तो इसीलिए आप लोगों को भी एक SNS जैसा कुछ प्रोवाइड किया गया. इट्स अ वेब सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑपरेट एंड सेंडिंग नोटिफिकेशन फ्रॉम द क्लाउड. तो आपको किसी को भी मैसेज करना है, SMS करना है, इट्स नॉट फॉर अ पर्सनल यूज. ऐसा नहीं कि आप पर्सनल अपनी चैटिंग कर रहे हो उस पर जाकर, नो. आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर अपना कुछ एक सर्विस बिल्ड करनी है अगेन, और उसमें जो भी मैसेज आप लिखोगे दैट विल बी डिलीवर्ड टू एनी फोन नंबर और एनी email ID that you will provide. So we'll be searching for SNS first, that is simple notification service. Now inside that, let's say I have one topic. मेरे पास already एक topic है जो मैं create कर चुका हूँ. I am going to create another topic. Let's create a topic first. Okay, so whenever we create a topic, it will ask you like there is a first in, first out, and then there is a standard service. तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. We'll be okay with this service. You have to mention a name कि आपकी जो मैसेजिंग सर्विस है उसका आप क्या नाम रखना चाहते हो. सो लेट्स नेम इट एज BMPL message service. Okay, and if you want to display the name, it is optional. Then we have a lot of options, लेकिन कुछ करना नहीं है, just directly create the topic. Okay, topic must be maximum. Okay, so hyphens are not allowed here. Let's write the BMPL message service, create the topic. Now what it is saying, I think capital letters are also not allowed. No, it is saying 20 topic name must be maximum 256 character long. Okay, I think then we don't have to create this one. Let's, instead of this, let's get back to the topics. Okay, and if I go to dashboard, okay, then get back to the topics. Again, I'm going to create a topic first. Then inside this, it is asking for this type info. Okay, then let's try again. That is BMPL hyphen message hyphen service, and I'm going to remove this. Let's try to create it again. वापस देखते हैं, but it is giving some error. Why? Okay, then I will click on standard. Then I think it is okay. तो अभी .FIFO ये first in first out वाली सर्विस क्रिएट नहीं करते हैं. We are using the standard here. Best effort messaging ये सब कुछ है इसके पास, तो यहाँ से जाकर हम इसको क्रिएट करके आते हैं. Let's create it. Now after creating it, it is asking you to publish the message. मैसेज पब्लिश करने का मतलब है कि अब आप मैसेज करना चाहते हो किसी को, लाइक यू वांट टू पुश नोटिफिकेशन, यू वांट टू सेंड SMS, और यू वांट टू डू द मेल. आप जो भी यहाँ से सर्विस इसकी यूज करना चाहते हो.
Okay, but before that, we'll do one thing. Go to the topics, topic 1, and there you will see one subscription. So there is some endpoint, तो यहाँ से जाकर आप एक subscription create कर सकते हो. And in this subscription part, what you have to do, there is a protocol that you have to select. Protocol select करने का मतलब है कि आप email service देखना चाहते हो या SMS service. So let's say I just want to see the email service. अब अगर email service देखनी है तो you need to provide the email ID. So I'm just writing my own email ID. And after that, let's create subscription. Now the subscription is being created successfully. Okay. So it is status confirmed. Okay. Now after the subscription is being created, let's go to the message server again. Now we'll be having a publish message option. Okay. And get back to see whether it is confirmed or not. Topics में ये देखना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपने अभी टॉपिक क्रिएट किया है या जो सब्सक्रिप्शंस आप क्रिएट करते हैं वो क्रिएट हो चुके हैं. मेक श्योर दैट आर ऑलरेडी क्रिएटेड और उनके सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर आ चुके हैं. बट स्टिल वी आर अनेबल टू सी द सब्सक्रिप्शन. व्हाई? लेट्स सी. हम लोगों को इसने सब्सक्रिप्शन शो नहीं किया है. आई हैव दिस ईमेल आईडी. आई विल राइट अगेन. Okay, I got it. So what exactly the problem is, like you won't be able to see the subscription until you confirm it. Okay, so you just need to go to Gmail to confirm your subscription actually. So I think I'll go again on create subscription and I will confirm it with my another device. Like मैं अपने मोबाइल के थ्रू जाकर इसको confirm करके आ जाऊंगा so that I won't have to open the Gmail here. इसकी जरूरत नहीं है. You just, there will be a simple link will be provided to you and you just have to confirm it by clicking on it. Okay, तो जैसे ही आप ये करते हो एक मेल आती है आपके पास and what you have to do, just click on the confirm. और जैसे ही आप उसको confirm करके आओगे, after that get back to the subscriptions. Now you can see it is pending now. अब यहाँ पर pending आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था. ठीक है, अब हमने confirmation कर दिया है. इसको एक बार refresh कर देते हैं. Let's see, it is confirmed, not yet, pending confirmation. But I just confirmed it. Let's refresh it again. ओके, तो अभी मैंने शायद इसको 2 बार मेल किया तो इसलिए मेरे पास आई गेस 2 बार ही मेल आई है. सो आई विल जस्ट कंफर्म इट अगेन और लेट्स डू वन थिंग. गो टू दिस जीमेल एंड फ्रॉम हियर we'll see the mail. यहाँ से जाकर उस पर चलते हैं. AWS notifications. You have chosen to subscribe. Confirm subscription कर देते हैं यहाँ से. Again refresh करते हैं. Still pending. Okay, let's do one thing. मैंने ऑलरेडी जैसे एक के साथ सब्सक्राइब किया हुआ है. If you will just go to your topic. सेकंड उसमें शो कर रहा था. Sorry. सर जो मेल में सेकंड वाला था सर, उसमें जो 3 डॉट है सर, वहां पे क्लिक करके देखिए. यस सर. सर वहां पे कंफर्म सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं एक बार, अगर हो जाता है तो अभी. ठीक है, तो वो दूसरी मेल के अंदर वो कोडेड टेक्स्ट के अंदर था. ओके, सो नाउ इट इज कंफर्म. तो अभी वो हम लोगों का कंफर्म हो चुका है. Now, after confirming your message, what are the steps now? कि अब अगर आप किसी को मेल या कुछ भी करना चाहते हो, so उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा? For that particular purpose, you have to select like कि अब जैसे ये तो एक सब्सक्रिप्शन हुआ आपका जिसमें आप मेल आईडी ऐड कर रहे हो. You can create another subscription और उसके अंदर जाकर आप अपना फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो. So it will just like SMS you. Okay,
नाउ फाइनली हमने कंफर्म कर लिया सब्सक्रिप्शन. आफ्टर दैट इफ यू वांट टू सी दैट हाउ इज इट गोइंग टू मैसेज अस, कि किस तरीके से हम लोग को मैसेज करके आता है. तो लेट्स गो टू द टॉपिक्स. एंड इनसाइड दिस टॉपिक आई विल पब्लिश मैसेज पे चलते हैं. अब यहां से आपने क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट पिक करना है, सम मैसेज फ्रॉम AWS, and then this is the body. So hope you doing well. That's it. And publish message. That's it. So it has successfully sent me a message. ये मेरे पास एक मेल आ चुकी होगी. I'll go to my inbox. So you can see some message from AWS. Hope you're doing well. So that is the simple notification service provided by Amazon AWS. Now I hope it is also clear. You can even try this thing with the mobile phone and all. आप इसको किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हो. अब हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे, जैसे कि सपोज क्या होता है कि लाइक आपको डेटाबेस आपने यूज किया या कोई भी EC2 इंस्टेंस आप यूज कर रहे हो, तो आप देखना चाहते हो कि इफ माय सर्वर एक्सीड 95% ऑफ यूजेज, डिस्क यूजेज, तो इट मस्ट मेल मी और सेंड मी सम SMS. तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी सर्विस मेरे लिए इमीडिएट एक मेल आ जाए या मेरे पास इमीडिएट एक SMS आ जाए जब भी मैं कोई इस तरह की चीज करता हूं. लाइक अगर कभी मेरा डिस्क यूजेज या सर्वर लोड 90% के अबव चला जाता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी कैन डील विद while talking about the messaging services and all. Everyone clear? समझ आ गया आप लोगों को? यस सर. सब कुछ स्टेप्स का गेम अगर आप देखें तो स्टेप्स के अलावा कुछ भी नहीं है. जस्ट आप लोगों को क्या करना होता है, स्टेप्स को ध्यान से देखना होता है, स्टेप्स को समझना होता है कि क्या क्या स्टेप्स यूज किए गए हैं इन सब चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके ओके, तो देखा भी आप लोगों ने कितनी जल्दी हम लोग के कितने टॉपिक होते चले जा रहे हैं. तो इसीलिए मैंने आपको बोल दिया 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक होते हैं. And we have this serverless architecture. ये है हम लोग का जो थोड़ा it is going to take the time, क्योंकि serverless architecture एक अलग ही चीज होगी माइट भी आप लोगों के लिए. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, AWS server and all पढ़ रहे थे, लेकिन अब all of a sudden क्या आ जाता है हम लोग के सामने, एक serverless architecture. Now what is this? Okay, so okay, तो let us talk about this thing. तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में और भी से सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में. तो अभी तक क्या था ना, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वी यूज टू क्रिएट द सर्वर्स एंड ऑल, लेकिन हम लोगों को पता है कि क्लाउड भी बैकएंड पे जाकर डेटा सेंटर्स ही यूज करता है. और जब हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वर्चुअलाइजेशन गोज एट द बैकएंड. तो जो भी आपके डेटा सेंटर्स होते हैं वो जाकर आपके सर्वर्स को वर्चुअलाइज करते हैं. तो आपको सर्वर हैंडल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी फेस करनी पड़ सकती हैं. लाइक व्हेनेवर वर्चुअलाइजेशन अलाउ अस टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल हार्डवेयर. आपके पास एक सिंगल हार्डवेयर है, उस पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हो. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप एक AWS की मशीन पे मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हैं अभी मेरे पास, कुछ इस तरीके से. ओके, तो अब हम लोग को कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है, EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करना होता है, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हो सकती है. सपोज मुझे किसी प्रोग्रामिंग पे काम करना है, आई वांट टू वर्क विद पाइथन प्रोग्रामिंग. तो पाइथन के अंदर पिप नाम से कमांड होती है जिसके थ्रू आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो. या Node.js पे काम करते हैं तो npm कमांड होती है जिसके थ्रू आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो. सो दीज आर द काइंड ऑफ पेन एरियाज यू कैन हैव व्हाइल वर्किंग विद द सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर. ओके, अब सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर की ये प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव द सॉल्यूशन नोन एज सर्वरलेस आर्किटेक्चर और सर्वरलेस कंप्यूटिंग. तो इस चीज के लिए हमको क्या मिलता है, देयर इज अ सर्विस नोन एज लैम्डा. ओके, अब इसका मतलब समझते हैं पहले. द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस का बेसिक जो मतलब वो ये है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द AWS रिसोर्सेज टू लॉन्च नाउ. Okay, I'm repeating the thing. I'm saying you don't have to worry about the which AWS service you have to launch or how you have to manage them. आपको क्या करना है, लैम्डा एक सर्विस होगी जिसके अंदर अपना कोड लिखना है और उसको रन कर देना है. That's it. बाकी जितना भी काम होगा वो AWS लैम्डा का होगा. आपको सिर्फ क्या करना है, कोड लिखना है, वहां जाकर उस कोड को एग्जीक्यूट करके आ जाना है. तो हम कब यूज करते हैं AWS लैम्डा को? We are going to, whenever we need to execute the backend code यानी कि Python, PHP,
Node.js, मुझे अगर किसी भी इस तरह की प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना है, लॉन्च करना है, काम करना है उसमें, सो आई विल यूज AWS लैम्डा सर्विस। ओके, अब इसका काम करने का तरीका क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली द वे इट वर्क्स इज, जो भी कोड हम लोग लैम्डा पे लिखते हैं उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन, इट इज नोन एज अ लैम्डा फंक्शन। सो द कोड दैट यू वांट टू रन इज लैम्डा फंक्शन। तो हम लोगों को एक लैम्डा फंक्शन नाम की चीज मिलती है। अब लैम्डा फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये ट्रिगर करेगा किसी ना किसी इवेंट को। ओके, या इवेंट ट्रिगर करेगा आपके लैम्डा फंक्शन को जब आपका एक टास्क एग्जीक्यूट होगा। टास्क क्या है, टास्क जो कोड के अंदर आपने बताया होगा कि मुझे जाकर इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी आपने इवेंट मैनेज किया हुआ है या जो भी आपने लिखा होगा कोड, वट एवर द कोड इज। ओके, तो अभी माइट भी इतना क्लियर नहीं होगा until unless we look into the like practical usage of it. ओके, बट फर्स्ट पॉइंट इज कि अब हम सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर्स फॉलो ना करके हम लोग फॉलो करने वाले हैं सर्वर लेस आर्किटेक्चर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, कि जब हम लोग सर्वर बेस्ड या सर्वरलेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, GCP जिसको बोलते हैं, तो उसके पास भी ना अलग अलग प्रोग्रामिंग सर्विसेज की एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे ही हम AWS में भी देखना चाहते हैं। सेम थिंग वी वांट टू लुक इन दी AWS। ओके, तो अब AWS क्या करता है, कहता है कि यूजर विल बी ओनली गेट चार्ज बेस्ड ऑन द कंप्यूट टाइम। जितना आपने एक लॉजिक लिखा, वो लॉजिक जितना टाइम लेगा ना एग्जीक्यूट होने में, जितना टाइम वो आपका कोड एग्जीक्यूट होने में ले रहा है, उस बेसिस पे अब आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आपका कोड बहुत इजी है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है, तो बहुत कम चार्जेस होंगे। अगर आपका कोड हैवी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तो उसके बेसिस पे आपके चार्जेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस AWS लैम्डा। तो क्या करना है हम लोगों को, लेट्स गो टू दी AWS हियर, और यहां से जाकर हम लोगों ने सर्च कर लेना है लैम्डा। So you can see run code without thinking about the servers. Okay, तो अब आपके लिए AWS लैम्डा क्या क्या करने वाला है, सर्वर को मैनेज करना इसका काम है, सर्वर को मैनेज करना इसका काम है, कैपेसिटी को मीट करना इसका काम है, डिप्लॉयमेंट इसका काम है, स्केलिंग करना, हाई अवेलेबिलिटी ये भी इसका काम है, अपडेट, सिक्योरिटी ये सब इसका काम है। हम लोग का काम क्या है, वी जस्ट हैव टू वरी अबाउट द कोड, दैट्स इट, एंड देन you have to pay for what you use, that's it. EC2 इंस्टेंसेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका सिस्टम आइडियल है ना, कुछ नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ उसको लॉन्च करके छोड़ दिया है, तब भी आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि इट इज स्टिल रनिंग, इट इज स्टिल यूटिलाइजिंग AWS। लैम्डा क्या कहता है, कहता है नहीं, अगर आपका सिस्टम आइडियल है, आई विल नॉट चार्ज। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। आई होप इट इज क्लियर कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि डिफरेंसेस क्या है, कि अगर लैम्डा फंक्शन की बात करें, लैम्डा की बात करें, तो वो मुझे देखो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। लेट मी राइट हियर, वो मुझे एक सर्वर दे रहा है, मुझे नहीं, मतलब मेरे सामने नहीं होगा, ऑल दिस थिंग विल बी एट द बैक। कैपेसिटी नीड्स को फुलफिल कर रहा है ये, मेरी डिप्लॉयमेंट को फुलफिल करता है ये। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड यू स्केलिंग, कि कभी भी जितना चाहिए उतना स्केल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स एंड सिक्योरिटीज को भी यही हैंडल कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग आर हैंडल्ड बाय दिस थिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कोड करना है, और अगर आप इन केस कभी भी आपकी मशीन आइडियल है, तो यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। बट EC2 इंस्टेंस ऐसा नहीं है, उसके अंदर आपको पे करना पड़ता है जब एक बार आप मशीन बिल्ड कर लेते हो तो। ओके, सो विल बी मेकिंग वन बेसिक प्रोग्राम ऑफ लेट्स से पाइथन प्रोग्रामिंग। हम पाइथन का कोई एक बेसिक प्रोग्राम इसमें जाकर बनाना सीखते हैं। तो what you have to do is, आप lambda पे आते हो, you can see I've already created one function, but I'll create another function here. एक और हम लोग function create करते हैं। So the moment you click on a create function, it will show you these 4 options: author from scratch, use a blueprint, container image, और browse serverless app repository. Okay, तो हम लोगों के पास ये अलग अलग options है, जिसमें से हम लोग स्क्रैच से अगर कोई कोड करना चाहते हैं तो आई विल सिंपली क्लिक हियर, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट यूज करना चाहते हो। एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट का मतलब कि पहले से ना कुछ कोड्स अवेलेबल है Node.js के अंदर, पाइथन के अंदर, यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम और उसको एग्जीक्यूट करके आप ट्राई कर सकते हो दैट हाउ इट इज वर्किंग।
ओके, दैट इज द सिंपल थिंग. अब हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है. आई वांट टू क्रिएट माय ओन फंक्शन. तो ये क्या पूछता है आपसे, आपके फंक्शन का आप नाम क्या रखना चाहते हो. लेट्स राइट bmpl python और लेट्स नेम इट एज सिंपली हेलो वर्ल्ड ही कर देते हैं. ओके, अगेन आई एम क्रिएटिंग हेलो वर्ल्ड. Now that's it, and you have to pick the programming, the runtime. I want Python. आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जस्ट लुक एट दिस थिंग, जावा, नोड.js, पाइथन, देन .NET, रूबी. सो दीज आर दी ऑप्शंस यू हैव. तो अभी हम लोगों ने पाइथन 3.9 को सेलेक्ट किया, देन क्रिएट द फंक्शन. तो जैसे ही हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल आस्क यू द ट्रिगर एंड ऑल. It is taking few seconds. Okay, now it is asking you to add the trigger. अब ये ट्रिगर वगैरह कुछ ऐड करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई you have to add the trigger. ट्रिगर क्या होता है, कहता है देखो आप यहाँ से कोई एक ऐसी सर्विस को ऐड ऑन कर सकते हो. सपोज Alexa skills you want, Apache Kafka, CloudWatch, कोई भी इस तरह की अगर आपको स्किल को ट्रिगर करना है. So I don't have to trigger anything right now. Okay, I simply want to make a basic function. ये हम लोगों ने जाकर यहाँ पर देखना शुरू करते हैं. जस्ट लुक एट दिस कोड. ये कोड इसने खुद बिल्ड किया है. दिस कोड इज बिल्ड बाय द लैम्डा फंक्शन बाय इटसेल्फ. तो इसने जाकर ये कोड बिल्ड किया. अभी हम इसको समझेंगे दैट हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड. एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे अगर खुद से लॉन्च करना था, खुद से कुछ कोड करना था, क्योंकि इसने क्या किया, ये तो इसने खुद जाकर लिखा ना. अभी भी अगर इसको देखे तो द प्रॉब्लम इज, जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो ना, whenever you create a function, let's name it as vm. पहले एक बार चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन क्रिएट हो गया क्या हम लोगों का. इट इज क्रिएटेड. ठीक है, क्रिएट हो चुका है. तो एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वन. एक और क्रिएट करते हैं. bmpl python 2 के नाम से हमने क्रिएट किया. देन गो टू python 3.9 और यहां से जाकर अब हम लोग कुछ डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल चूज करते हैं. क्रिएट अ न्यू रोल फॉर बेसिक लैम्डा परमिशन. इसके लिए तो आई डोंट थिंक वी हैव टू डू एनीथिंग, और वी कैन क्रिएट अ न्यू रोल फॉर AWS एग्जीक्यूशन. लेट्स गो टू द एडवांस सेटिंग्स, कोड साइनिंग. आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ करना है एक्चुअली हम लोगों को. Okay, use an existing role, create a new role for AWS policy template. Okay, तो ऐसा करते हैं, create a new role for AWS policy template करते हैं, जिसमें कि आप अपना कोई रोल नेम मेंशन कर सकते हो. let's say हमने BMPL और यहाँ जाकर लिख कर आते हैं lambda. ओके, तो ये कुछ ऑप्शनल है. अच्छा, पहले क्या होता था, यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स भी आती थी जिसमें कि आप अपनी मेमोरी, टाइम आउट, कुछ ऐसी चीजों को भी कॉन्फ़िगर किया करते थे. बट नाउ वी कैन सी देयर इज नथिंग लाइक स्टोरेज एंड ऑल. ओके, लेट्स क्रिएट द फंक्शन. lambda demo already exists. Let's name it demo2 then. ओके, तो देखते हैं क्या करता है ये अभी जाकर. इट इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट दी फाइनली फंक्शन फॉर यू. एक फंक्शन क्रिएट करके आएगा. टेकिंग फ्यू सेकेंड्स. ओके, नाउ द फंक्शन इट हैज क्रिएटेड. अगेन द सेम थिंग वी हैव कि इसने जाकर जो भी फंक्शन क्रिएट किया, अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो हेलो फ्रॉम लैम्डा बाय डिफॉल्ट ये खुद ही हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है. हमने इसमें अभी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कोड की तरफ से. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो टू टेस्ट हियर, and from test just click on this test, event details succeed, go to details. यहाँ पर आपको नजर आएगा कि स्टेटस कोड 200 मतलब सक्सेस. बॉडी में लिखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम लैम्डा. इट मींस द कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. दिस इज द समरी. समरी में अंदर चलते हैं. यहाँ पर देखना शुरू करते हैं. बिल्ड ड्यूरेशन 2 मिलीसेकेंड्स, 2 ms. ओके, मेमोरी साइज बाय डिफॉल्ट इसने फिक्स किया हुआ है 128 MB मैक्सिमम कुछ. ओके, क्योंकि इसकी लिमिटेशन सही है कि इसका जो लाइक रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा हाई मेमोरी अवेलेबल नहीं होते हैं. वो 128 MB, 512 MB इस तरह के रिसोर्सेज आपको मिलते हैं.
मैक्सिमम मेमोरी यूज्ड 51 MB, वो भी पाइथन की वजह से, कि पाइथन हमने यूज किया, उसकी वजह से वी हैव यूज दिस अमाउंट ऑफ मेमोरी. So that's how we basically get started with this AWS Lambda. अब आप यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग को चूज करके you can test anything, whatever you want. So I hope it is clear that what is AWS Lambda and what is the serverless architecture. समझ आया भी आप लोगों को? तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपल था ये वाला, थोड़ा बहुत इसमें कुछ है, कॉम्प्लिकेशन जरूर है. हाँ जी बताइए भाई. सर अगर हम इस कोड को एडिट करना हो तो सर हम कोड वाले ऑप्शन में ही करेंगे एडिट? हाँ हाँ बिल्कुल, कोड वाले ऑप्शन में आप उसको एडिट कर सकते हो. यस सर. ठीक है, तो अभी हम ना इसकी एक वर्किंग देखने वाले हैं, लैम्डा की इंटरनल वर्किंग क्या होती है. ओके, ठीक है जी, देखना शुरू करते हैं. So let's see how internally Lambda actually work. Okay, Lambda internal working. अब इसका क्या मतलब है कि इंटरनली लैम्डा कैसे वर्क करता है. मतलब ऐसा समझ के चलते हैं कि सपोज यू आर अ यूजर एंड you are going to upload some image to your bucket in S3. Okay, आप अपने बकेट में जाकर कोई इमेज अपलोड करके आते हो. सिंपल. नाउ दिस इज सपोज S3 एंड दिस इज द यूजर. तो S3 क्या करता है? S3 ट्रिगर्स एन इवेंट. S3 क्या करता है? इट ट्रिगर इवेंट. एक इवेंट ट्रिगर करता है ये. अब वो जो इवेंट ट्रिगर होगा उसमें क्या होता है, या ये इवेंट क्या होता है? दिस इवेंट इज एक्चुअली द लैम्डा फंक्शन. ओके, ये जो इवेंट है यही क्या है आपका? दिस इज द लैम्डा फंक्शन. तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है? इट टेक्स योर इमेज, आपकी इमेज को पिक करता है और उस पर कुछ एनकोडिंग अप्लाई करता है. ओके, लैम्डा क्या करता है? इट एनकोड्स योर इमेज, और जब इमेज पे एनकोडिंग हो जाती है तो वापस इसको आपकी बकेट में स्टोर कर देता है. अगेन गेट बैक टू दी S3. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग कि इंटरनली ये कैसे वर्क करते हैं. कि आप कोई ऑब्जेक्ट को अपना डालते हो S3 में, वो जाकर एक इवेंट ट्रिगर कर रहा है, मतलब कि एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर करता है. फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं? लैम्डा फंक्शन क्या करता है, उसका क्या रोल है यहाँ पर? इट इज गोइंग टू एनकोड दिस थिंग. तो इनकोड करने के बाद वापस उसको किधर डाल दिया? S3 के अंदर. अब लैम्डा फंक्शन और क्या कर सकता है कि ये किसी और लैम्डा इवेंट को भी ट्रिगर कर सकता है जो कि इमेज की लोकेशन रिटर्न करती है मुझे. ओके, तो ये इस तरह की कुछ कुछ और भी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है यहाँ पे. या ऐसा भी कुछ कर सकता है कि S3 से बकेट से इमेज को लेगा और किसी और बकेट में डाल के आ सकता है, कहीं और लोकेटेड है जो किसी और जगह पर, एनीवेयर. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग कि लैम्डा का एग्जैक्टली ये मतलब अभी हमने जो देखा था वो ये था कि एक AWS लैम्डा क्रिएट किया, लैम्डा सर्विस में जाकर आपने अपने कोड पुट किया, तो वो एक हमारा फंक्शन था जिसके थ्रू हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस एक सिंपल कोड एग्जीक्यूट करके देखा था. बट द मेन थिंग अबाउट दिस इज कि इंटरनली क्या करता है कि जो भी आपका इवेंट है उसको ट्रिगर करना और एक बकेट से दूसरी बकेट में कुछ इंसर्ट करना एंड ऑल, इस तरह की कुछ कुछ चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं. Okay, now I hope it is also clear that how exactly it works internally. बताइए भाई, कुछ कुछ समझ आया? लैम्डा में मानकर चलता हूं कि माइट भी ये बाकी टॉपिक्स के जितना इजी नहीं होगा समझना, थोड़ी जरूर इसमें कॉम्प्लिकेशन है, बट कोई नहीं, एक बार ट्राई करोगे तो थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा. हाँ जी बताइए भाई. क्या हो भाई, कंफर्मेशन नहीं दे रहे हो आप लोग?
ओके, और व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? बाकी लोग भी बताएं भाई। ओके, चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग का इलास्टिक लोड बैलेंसर, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ओके, ठीक है जी, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद इट नाउ, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ये सारी बातें। Yes, sir. So the next term is, or the next service we are going to talk about is ELB, that is elastic load balancer. लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, what is load balancing क्या होती है? Now, is Amazon AWS actually provides you a service for load balancing that is known as elastic load balancer. लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या समझना है, what is load balancing? Let's say you have some sort of a application, हम लोगों के पास कोई भी एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, you are using something on your mobile phone, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर रहे हो, ओके, एंड देयर इज सम अदर यूजर, देयर इज सम अदर यूजर, ऐसे करके मल्टीपल यूजर्स हैं, सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो इंटरनली बीच में अब क्या होगा कि व्हाट आई नीड इज कि अगर अलग अलग जगह से अलग अलग ट्रैफिक आने वाला है, ओके, अब इमेजिन करना है आपको कि you have some application that you have deployed on your EC2 instance, okay, just understand this, आपने अपने EC2 instance पर कोई deployment किया हुआ है। अब EC2 instance क्या करता है, एक limited traffic को get करता है, okay, EC2 instance में क्या होता है, एक limitation होती है कि वो कितना ट्रैफिक किस तरीके से हैंडल करेगा, और आपके पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसीलिए आपके पास लिमिटेड ट्रैफिक है, सिंपल, ओके। नाउ अब हम इसको ऐसे देखना शुरू करें कि अगर ऑल ऑफ अ सडन बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ जाए तो क्या होगा, और हमारी एप्लीकेशन उसके लिए रेडी नहीं है, सो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट ट्रैफिक? बेस्ट एग्जांपल इज जब भी कॉलेज का रिजल्ट वाला दिन होता है, जस्ट रिलेट दिस थिंग, व्हेनेवर द रिजल्ट डे इज देयर, आपके कॉलेज की वेबसाइट हैंग हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे ही आप कॉलेज की वेबसाइट पे अपना रिजल्ट देखने के लिए जाते हो, देख ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हैं भाई? कि वेबसाइट ही हैंग है। वेबसाइट हैंग क्यों हो गई? सोचो क्यों हो गई एकदम से? तो सर्वर पे लोड आ जाता है उतने यूजर्स का, एकदम ऑल ऑफ अ सडन इतना सर्वर पे लोड आ जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल रिलेट करते हैं। आप लोगों को याद है कि एक बार क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट जब नया नया आया था, फ्लिपकार्ट ने पहली बार जब बिग बिलियन डे सेल निकाली थी, तो मुझे नहीं पता भाई उस टाइम पे आप लोग की एज क्या थी, लेकिन क्या हुआ था उस टाइम पे, किसी को याद है जब ₹1 में पेन ड्राइव दी थी फ्लिपकार्ट ने, कुछ बहुत सस्ते सस्ते में बहुत सामान दिया था उसने। तो हुआ ये था कि अमेजॉन, इसकी फ्लिपकार्ट की जब पहली बार ये बिग बिलियन डे सेल लॉन्च हुई थी, इन शायद 2014 और 15 की बात है ये, तो फ्लिपकार्ट ने बोला कि देखो इतने बजे सेल होगी शुरू। अब आपको तो पता है कि ये इंडिया है, इंडिया में क्या होता है ये भी आपको पता है, कि जैसे ही टाइम हुआ सेल का, पब्लिक बिल्कुल मतलब ऐसे टूट के पड़ी फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट का सर्वर क्रैश, क्योंकि फ्लिपकार्ट को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। क्योंकि देखो अभी क्या है, इंडिया में दो ही तो चलते थे, एक अमेजोन एक फ्लिपकार्ट, और अमेजोन इतना हिट नहीं था क्योंकि फ्लिपकार्ट पहले आ चुका था मार्केट में, और सेल का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो क्या होता है, हर फेस्टिवल पे सेल आ जाती है, सर्दी खत्म होती है सेल आ जाती है, सर्दी की शुरुआत में सेल आ जाती है, गर्मियों में सेल आ जाती है, हर जगह सेल ही सेल। लेकिन तब पहली बार सेल निकाली थी फ्लिपकार्ट ने, और उसमें भी क्या बोल दिया, ₹1 में पेन ड्राइव। जस्ट इमेजिन दिस। तो अब ऐसे में क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक आ गया, तो सोचो कैसे हैंडल करें उसको।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई ना आप लोगों को? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है भाई यहाँ पर यस सर। कि अब हम लोगों के पास अगर एक ही मशीन है तो भाई उसी पे आप सारा लोड डालते जा रहे हो। जैसे आपका कॉलेज का जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट टिल एन, सब क्या कर रहे हैं? कॉलेज के उस रिजल्ट को जो देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए व्हाट वी नीड इज अ लोड बैलेंसिंग। ऐसी ही चीजों को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए होता है? लोड बैलेंसिंग चाहिए होती है। तो अभी क्या ना, आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है जो सारा का सारा आपका लोड हैंडल कर रहा है। अब ये कैसा दिखेगा? इफ यू विल हैंडल द लोड विद द लोड बैलेंसिंग टेक्निक। तो इसने क्या किया है, कहता है देखो ऐसा है कि भाई आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर लोड बैलेंसर टेक्निक, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ लोड बैलेंसर्स जैसी कोई चीज बना रहे हो। सो द लोड बैलेंसर will realize that if there is too much of traffic on a particular service, एक सर्विस पे, एक एप्लीकेशन पे, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो AWS के पास एक ऐसा फीचर है जो आपके रिसोर्सेज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकता है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है? ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को स्केल अप कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट? बड़ी सिंपल सी चीज है और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज है। सोचो कि AWS क्या करता है, देखता है जैसे ही मेरे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गया तो इलास्टिक लोड बैलेंसर जो चलता है Amazon का, ये चेक कर लेता है कि अच्छा अनवांटेड और ये इतना एक्सपेक्टेड ट्रैफिक नहीं था, तो आई विल स्केल अप योर रिसोर्सेज, जो कि आपके बड़े इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। सो बेसिकली लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक, कि आप कितना एफिशिएंटली इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल कर पाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप जब भी किसी ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे लाइक वो होती है, हम लोगों के पास किसी रेड लाइट ग्रीन लाइट सिग्नल होता है जो हमारा, वहां पर अगर एक ही ट्रैफिक वाला खड़ा है और लाइट वाइट चल नहीं रही है, तो आपको पता है ना इंडिया में क्या होता है भाई, जिस भी सिग्नल पे लाइट खराब है अपने आप से तो कोई रुकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है भाई। हमारे कंट्री में सब चलते ही चले जाते हैं। अब एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, अभी तक लाइट ऑन है, मतलब अभी भी क्या है, सिग्नल चालू है कि भाई रेड लाइट ग्रीन लाइट सब वर्क कर रहा है, एक पुलिस वाला मेंटेन कर रहा है, हैंडल कर रहा है सबको। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया? लाइट खराब हो गई। अब आपको तो इमेजिन कर ही चुके हो आप क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में। तो इमीडिएटली अनएक्सपेक्टेडली क्या होना शुरू हो जाएगा? कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, हर तरफ से अलग 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 लोग आते जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस चीज का? सर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो अब मेरे पास अभी तो कुछ ऐसा रिसोर्स था ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, वहां पे मैं 4 खड़े कर दूंगा ले जाकर, तभी तो लोड बैलेंसिंग होगी। तभी देखो, अब एक पुलिस वाला इतने ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता ना, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 4-5 पुलिस वाले चाहिए जो उस लोड को, जो उस ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। यही स्केल अप और स्केल डाउन का काम AWS करता है आपके लिए। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? यस सर। Okay, now we have different type of load balancing techniques. हमारे पास 3 तरह के load balancers होते हैं। There is a classic load balancer. There is a application load balancer. There is a नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो हम लोगों के पास 3 तरह के लोड बैलेंसर्स होते हैं। एक होता है क्लासिक, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है नेटवर्क। ओके, तो मोस्ट बेसिक जो होता है हम लोगों का वो होता है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो ये क्या करता है कि जो हमारा EC2 इंस्टेंस नया नया आया था ना इनिशियली, तो इसी को यूज करता था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि अगर द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर वन इज द टाइप ऑफ लोड बैलेंसर इज कि ये सपोर्ट नहीं करता था कुछ फीचर्स को, जैसे कि एक होता है हम लोग के पास होस्ट बेस्ड राउटिंग या पाथ बेस्ड राउटिंग। तो इसका मतलब अगर एक बार आपने लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये क्या करता है? बैलेंस करता है आपके लोड को अक्रॉस दी सर्वर, जो भी आपके अलग अलग सर्वर्स हैं,
regardless of what is present on the server, and that might end up reducing the efficiency and performance in few of the situations. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि मेनली क्या होता है कि हम लोगों का ये सबसे बेसिक फॉर्म है, तो इसके अंदर ये कुछ ऐसे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि डज नॉट सपोर्ट द होस्ट बेस्ड राउटिंग और पाथ बेस्ड राउटिंग। तो इसका मतलब ये कि अगर हम लोगों के पास एक बार जो लोड बैलेंसर उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो व्हाट इट डज इज इट बैलेंसेस द लोड अक्रॉस द सर्वर, ओके, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द सर्वर। जो सर्वर पे करंटली प्रेजेंट है उसको छोड़कर, मतलब उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर, बट दैट माइट एंड अप दी रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो ये जो हमारा सेकेंड टाइप का लोड बैलेंसर है, इसको हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास HTTP या HTTPS ट्रैफिक की राउटिंग होती है, ओके। जब हम लोगों के पास HTTP या HTTPS ट्रैफिक की राउटिंग होती है, तब हम इस लोड बैलेंसर को यूज करते हैं, ओके। एंड देन देयर इज अ नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो ये क्या करता है, एक नेटवर्क लोड बैलेंसर हम लोगों का एक OSI मॉडल होता है हम लोग का। लेट मी शो इट टू यू। सो आई होप आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने OSI? यस सर। तो OSI मॉडल के अंदर आपकी जो लेयर्स होती हैं उसी की यहाँ पर बात चल रही है। तो आपकी जो ये थर्ड जो लेयर है नीचे से, दैट इज द नेटवर्क लेयर, ये होती है। और फिर एक इसमें कनेक्शन यही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस लेयर पे आकर आपका समझना है कि इट इज मेनली यूज फॉर लोड बैलेंसिंग TCP ट्रैफिक, ओके, दैट इज ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी हैव दिस नेटवर्क लोड बैलेंसर। सो इट कैन एक्चुअली हैंडल मिलियन ऑफ ट्रैफिक। ये सब वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आप लोगों के ट्रैफिक को हैंडल करने का। और अब हमें नीड भी पता है कि हमें नीड क्या है, क्यों हम लोगों को लोड बैलेंसिंग की जरूरत है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हो, मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट है, आपकी एप्लीकेशन है, एंड देयर कुड बी अनवांटेड अननेसेसरी ट्रैफिक दैट माइट अपीयर ऑल ऑफ अ सडन। तो इस सिचुएशंस में आपको लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ती है, ओके। नाउ व्हाट आर द एल्गोरिथम्स फॉर लोड बैलेंसिंग? सो आई होप आप लोगों ने इन एल्गोरिथम्स का नाम सुना होगा। राउंड रॉबिन का नाम सुना आप लोगों ने? Have you guys heard about this thing, round robin? नो सर। नो सर। There is a least connections and then there is a source. क्या होता है कि हम लोगों के पास अलग अलग तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप कभी अच्छे से पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इसकी एक एल्गोरिथम होती है राउंड रॉबिन की ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब एक इन डेप्थ अलग ही एल्गोरिथम होती है, बट दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट इन दीज थ्री, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सो बेसिकली इट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको एक ग्रुप ऑफ सर्वर में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये क्या करता है कि ये सबसे पहले ट्रैवर्स करेगा आपके, मतलब जो भी लिस्ट ऑफ सर्वर अवेलेबल है ग्रुप के अंदर, ओके। सो फर्स्ट इट विल ट्रैवर्स ऑन दैट एंड देन फॉरवर्ड द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू ईच सर्वर वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास एक ग्रुप ऑफ सर्वर है, तो इसने क्या किया, ये जाकर आपकी जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अक्रॉस द ग्रुप ऑफ सर्वर। तो राउंड रॉबिन सबसे पहले लिस्ट ऑफ सर्वर को उठाता है, ट्रैवर्स करता है ग्रुप के अंदर, फॉरवर्ड करता चला जाता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर बाय सर्वर, वन बाय वन। और जैसे ही वो लिस्ट के एंड में पहुंच जाता है, देन इट विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट। इसीलिए इसको राउंड रॉबिन बोलते हैं, ओके। बाकी थोड़ा और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू बी लाइक अवेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा देखना पड़ेगा इसको अच्छे से समझने के लिए, ओके। सो दैट इज व्हाट द लोड बैलेंसिंग इज। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये समझा है कि लोड बैलेंसिंग क्या होती है और किस किस हमारे पास टाइप की लोड बैलेंसिंग अवेलेबल है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम लोग को लोड बैलेंसर क्रिएट करना होता है तो क्रिएट कैसे करते हैं. लेट्स गो टू दिस AWS and from here I will simply go to the instances. हमारे पास already instance है यहाँ पर, ठीक है. We don't have to search anything, just scroll down on the left side, you will be able to see load balancers. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या नजर आ रहा है. It is saying that there is some sort of a load balancer thing. Just click on it. तो बाय डिफॉल्ट आई डोंट हैव एनी लोड बैलेंसर अवेलेबल. अभी हमारे पास कोई भी लोड बैलेंसर अवेलेबल नहीं है. ओके, तो अब एक छोटी सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एक वेबसाइट होती है, जैसे हम लोगों ने डे 1 एक वेबसाइट क्रिएट की थी ना, आप लोगों को याद भी होगा, जो मेरे सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, आप लोगों के में एग्जीक्यूट हुई थी. आई होप यू रिमेंबर दैट, है ना? याद है भी आप लोगों को? यस सर. तो अब यहाँ जाकर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट लोड बैलेंसर पे चलते हैं. तो ये क्या पूछता है आपसे कि आप किस टाइप का लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो. सो देयर इज अ एप्लीकेशन, देन देयर इज अ नेटवर्क एंड देन देयर इज दिस गेटवे. गेटवे आपका क्लासिक है एक्चुअली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास, नहीं सॉरी, क्लासिक अलग है, देयर इज वन मोर गेटवे, अभी नए वर्जन्स में ही है. So you can see it has now 4 type of load balancer: application load balancer, network, gateway and classic. अभी हमने कितने लिखे थे? 3, but now there is 4. Okay, so we have these 4 gate balancer, sorry, the load balancers. अब यहाँ से जाकर आप कोई भी एक पिक कर सकते हो जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो. लेट्स से आप ये HTTP वाला क्रिएट करना चाहते हो. लेट्स गो टू द क्रिएट कमांड है. तो जब आप इसको क्रिएट करने जाओगे, देन इट विल आस्क यू टू कॉन्फ़िगर इट. लाइक इसमें आप इसका लोड बैलेंसर का क्या नेम रखना चाहते हो, देन देयर इज अ स्कीम. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऐसा समझ के चलते हैं कि जब भी हम लोग को लोड बैलेंसर क्रिएट करना होता है, तो सबसे पहले सपोज इसका नेम रख देते हैं हम BMPL लोड बैलेंसर. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस स्कीम internet facing. Okay, now what is this internet facing? So basically ऐसा समझ के चले आप इसको, that यहाँ पे लिखा भी हुआ है, an internet facing load balancer route request from client over the internet to targets. Okay, तो internal नहीं है, internet facing है. Internal मतलब within the private IP address. Then IPv4. okay, then we have this dual stack. okay, नेटवर्क मैपिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट करना हमें. देन देयर इज द सिक्योरिटी ग्रुप, ऑलरेडी हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है. देन वी हैव टू लिसनर्स एंड राउटिंग HTTP 80, दैट इज ऑल्सो ओके, इसको भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं. देयर इज टैग्स एंड आफ्टर दैट VPC. एक तो चीज़ें हैं जो टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर. लेट्स गो टू दिस VPC. ठीक है, यही पिक रखते हैं यहाँ पर हम. अवेलेबिलिटी जोन होगा एक यहाँ पर हमारा. ओके, सो लेट्स क्रिएट द लोड बैलेंसर नाउ. एटलीस्ट 2 सबनेट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड. तो लेट्स पिक दिस वन एंड दिस. ये ऑलरेडी क्रिएटेड सबनेट है, ये हम पहले भी देख चुके हैं. And we need, okay, there is one more thing required, that is this group. Select a target group. So we don't have any target group actually. यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक लोड बैलेंसर ही क्रिएट कर रहे होगे तो it will ask you to create this target group. इसको क्रिएट करता है. अब टारगेट ग्रुप में आप कोई लैम्डा फंक्शन पास कर सकते हो, जैसे कि कोई भी अगर आपका टारगेट ग्रुप नेम जो भी आपने लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया था, या इंस्टेंसेस पे ही रखते हैं दैट सपोर्ट लोड बैलेंसिंग टू इंस्टेंसेस विद दिस स्पेसिफिक VPC HTTP 1. ओके, और इसको नेक्स्ट करते हैं. इट विल अगेन आस्क दिस टारगेट नेम. ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एक बार. Instance IP address, let's name it as BMPL target
-1, ठीक है, इसका नाम हमने ये रखा। देन वी हैव http 80 इंस्टेंस vpc http 1 http 2 हेल्थ चेक http, इसको देखते रहना भाई आप लोग, जो भी मैं यहाँ पर सेटिंग्स कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, then we have this protocol health check path. There is a path actually we need. So what we can do here is, suppose if you have some sort of index.html available, जैसे कि अगर हम लोगों के पास कोई index.html जैसी कोई फाइल अगर अवेलेबल है, so I can put that here. अभी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी फाइल अवेलेबल नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट हाउ यू क्रिएट दिस थिंग। ओके, सो हेल्दी थ्रेशोल्ड 5, अनहेल्दी, ओके, इसको सबको छोड़ देते हैं अभी। लेट्स गो टू नेक्स्ट। Okay, so it has created this target group now. Okay. Now let's go to just specify group details. वापस आते हैं यहाँ पर load balancers पे। So actually we was creating this load balancer, देखते हैं शायद वो create नहीं हुआ होगा अभी। Let's create it again. HTTP or HTTPS. Then the load balancer name we picked was PMPL load balancer. Okay. Facing IPv4. Okay. Then pick any of the 2 subnet. यहाँ से 2 subnet pick करने हैं हम लोगों ने। Security group already created, तो जरूरत नहीं है। Testing, routing. Let's pick the select. Still we don't have any. शायद मेरे ख्याल से वो रजिस्टर नहीं किया था। ओके, वी जस्ट फॉरगॉट टू रजिस्टर दैट। ठीक है, तो एक बार वापस कर देते हैं इसको, हमने उसको रजिस्टर नहीं किया था। आई थिंक PMPL target group and here I just mention index.html. go to next. Okay, and then create target group कर देते हैं यहाँ से। तो हाँ, फाइनली अब आपका एक टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है यहाँ पर सक्सेसफुली। अभी देखते हैं, अभी शायद एक बार रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो माइट बी वी विल बी एबल टू सी दैट। सो लेट्स सी, इज इट शोइंग द टारगेट? या ओके, वापस इसको फिल कर देते हैं अभी। तो BMPL लोड बैलेंसर, देन सेलेक्ट टू सबनेट, then just open this box, pick your target group. I think we are done. Create करते हैं load balancer को यहाँ से। Okay, तो finally we have created the load balancer. यहाँ से हम लोग का ये load balancer create हो जाता है। Okay, let's view it. The only problem with this is कि हमारे पास कोई HTML फाइल अवेलेबल नहीं है। Okay, हम लोगों के पास यहाँ पर कोई भी HTML फाइल अवेलेबल नहीं थी, तो I just have created something like this. मैंने ऐसे ही इसको भी के लिए क्रिएट कर दिया है। Okay. Now after that, we can do one more thing. If you want to test it, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते। मैं एक बार आपको कल इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा। If you want to execute, if you want to see this thing in action, तो हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट करके यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई विल टेल यू, आप लोग क्या करोगे, आपको जरूरत नहीं है फाइल क्रिएट करने की, क्योंकि जो हमने डे 1 पे फाइल को लॉन्च किया था, तो वो डायरेक्टली फाइल आप अपना nginx सर्वर स्टार्ट करोगे। आफ्टर लॉन्चिंग योर nginx सर्वर, आपको उसको स्टार्ट करना है, फाइल को जाकर ओपन करना है। अब फाइल को ओपन करने के बाद, अब हम लोग यहाँ पर अपना लोड बैलेंसर क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। फाइल को ओपन करने के बाद जैसे ही आप उसको लॉन्च करोगे, ओके, तो जैसे ही आप उसको लॉन्च करते हो, लेट मी सी कि ये मुझे लॉन्च करने देगा कि नहीं देगा। आई डोंट थिंक करने देता है ये। तो लेट्स डू वन थिंग, let's copy it, try to paste it here. It is not able to show me the output. तो एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट अगर हमें देखना है कि ये कैसे होगा, तो हम लोग ना क्या करेंगे इसको देखने के लिए कि आपके पास एक पेज होगा, आप index.html जैसी कोई फाइल हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कोई ऐसी फाइल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आपने क्या करना होगा, जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपका इंस्टेंसेस में आपको जाना है। आपको पता होगा कि ऑलरेडी आपका एक इंस्टेंस रन कर रहा है, और यहाँ से आप उसका एड्रेस ओपन करोगे तो आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब वेब पेज ओपन होने के बाद
जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे ना बार बार, तो यू विल बी सी द चेंजेस। एक ही पेज होगा लेकिन उसी पेज पे आपको ना चेंजेस नजर आएंगे। ओके, वो चेंजेस कैसे और क्यों नजर आने वाले हैं? वो चेंजेस इसलिए नजर आएंगे क्योंकि लोड बैलेंसर चलता है, तो वो हर बार एक सर्वर को ट्रिगर ना करके अलग अलग ट्रिगर कर रहा होगा। तो एक बार आपको आउटपुट नजर आएगा, कुछ चेंजेस होंगे उसमें, फिर दूसरा जो आउटपुट आएगा फिर कुछ चेंजेस होंगे। समथिंग लाइक दैट विल हैपन। अभी नहीं हो रहा है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा व्हेन आई विल अपलोड वन इंडेक्स एचटीएमएल फाइल। इसीलिए मैंने एक अलग से फाइल बनाकर इस पे अपलोड करनी है। ओके, बट आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर है कि लोड बैलेंसर क्या है। अब बस चलाकर देखना बाकी है। तो अगर आप उसको जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, व्हेनेवर यू विल एग्जीक्यूट दिस थिंग, देन यू विल बी एबल टू सी कि हम उसको रिफ्रेश करेंगे, और जब भी हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन इट विल डायरेक्टली शो योर index.html ऑन योर होम पेज। मतलब उसको रन करोगे आप, रिफ्रेश करोगे तो अलग अलग हिट लगेगी हर बार। ओके, हाँ जी, बताइए भाई, इज इट क्लियर? बाकी लोग भी कंफर्मेशन दीजिए भी, रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आर वी क्लियर टिल हियर? Okay, so finally we have learned a lot of things till here. यहाँ तक भी बहुत सारी AWS की चीज़ें आप सीख चुके हो अभी तक, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। अभी जैसे हम लोगों को प्राइसिंग, बिलिंग के बारे में बात करनी है, दैट बिलिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के दो एस्पेक्ट होते हैं जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so till then, if you have any questions, any doubts, any queries, then please ask. And then again, I am requesting you all to please make your account as soon as possible. क्योंकि देखो, जितना अभी आप देख रहे हो कि मैं जब भी इनको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक कभी ये रह जाता है, कभी वो रह जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तब आपको ये बात समझ आएगी कि पहली बार में चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है, आपको भी बार बार करके देखोगे तब जाकर चीज़ें चलाने का लाइक समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ कैसे वर्क करने वाली है, इस चीज़ को कितना टाइम लगता है समझने में। तो ये सब एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा आप लोगों को। वो तभी समझ पाओगे जब आप उसको एटलीस्ट एक बार अपनी मशीन पर चलाकर देखोगे। जब तक आप उसको चलाकर नहीं देखोगे, यू विल बी ऑलवेज गेट स्टक, वो चीज़ें प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। ओके, सो it's a request to all of you again to please make your accounts as soon as possible and do all the practical things that we did till here. Okay, so I think we can wind up the session if no queries are left. Yes, sir, you can. Thank you so much for this wonderful session. Let's meet tomorrow at 3:30 p.m. for the sure. last session of the workshop. Okay, thank you guys. Thank you everyone. We'll see you tomorrow.